سب سے پہلے آپ کو بتائیں سدرن لوپ 3 کے دوبارہ افتتاح کی تیاریاں۔ نئی حکومت نے 28 اپریل کی ڈیڈ لائن دے دی۔ سابق نگراں حکومت نے 12 سال سے رکا منصوبہ ریکارڈ 130 روز میں مکمل کیا۔ محسن نقوی رواں سال 15 فروری کو افتتاح کر چکے، چند روز کا کام باقی تھا، حکومت بدلتے ہی کام بھی لچک گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سدرن لوپ 3 کا دوبارہ افتتاح 28 اپریل کو شیڈول کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل 9 اپریل کو افتتاحی تاریخ مقرر کی گئی۔ تختی اور پنڈال بھی سجایا گیا، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب کی مصروفیات کی بنا پر 9 اپریل کو تقریب منسوخ کر دی گئی۔ رنگ روڈ سدرن لوپ کا چند دن کا کام نگران حکومت کے جاتے ہی طوالت اختیار کر گیا۔ منصوبے پر سروس لینز، انٹرچینجز پر ٹول پلازا آپریشنل کرنے کا کام سست روی کا شکار کر دیا گیا۔ رنگ روڈ سدرن لوپ 3 کا مین ٹریک آپریشنل کرنے کے بعد رکاوٹیں لگا کر جگہ جگہ سے بند کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ CNW نے نئی حکومت کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے دوبارہ افتتاح تجویز کیا۔ نگران حکومت 15 فروری کو منصوبے کا افتتاح کر چکی ہے۔ لیسکو کے 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کا انتظار طویل، حکومت نے مفت سولر پینل دینے کا خواب دکھایا۔ اب وزیر اعلیٰ نے سولر مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کا حکم دے دیا۔ پہلے یونٹ لگے گا پھر سولر بنیں گے، جانے کب پینل بٹیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کے شہریوں کو مفت سولر پینل دیے جائیں گے، جس کے لیے ابتدائی تجاویز پر پنجاب حکومت منظوری دے چکی ہے، لیکن اب دوسری جانب سولر پینل کی تقسیم میں تاخیر ہے، جس کی وجہ سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ سولر پینل تقسیم سے قبل پنجاب میں تیار کیے جائیں گے، جس کے بعد شہریوں میں تقسیم ہوں گے، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے لیے صوبے میں یونٹ لگانے کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سولر پینل کا ٹھیکہ جس کمپنی کو دیا جائے گا وہ پنجاب میں یونٹ لگائے گی۔ سولر پینل کے معیار کو محکمہ توانائی پنجاب مانیٹر کرے گا۔ پنجاب میں 50,000 پروٹیکٹڈ صارفین کو سولر پینل دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ مرگی سمیت دیگر 11 امراض کی ادویات جعلی، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری پنجاب کے تجزیے میں بڑا انکشاف، بانجھ پن کے علاج زخموں پر لگانے والی ادویات جعلی نکلی، 4 انجیکشنز میں مختلف مواد کے زراعت پائے گئے، سیرپ ریسیٹرل، سیرپ ٹارکس ڈی ایم اور سیرپ ٹیکسکول ڈی ایم فیل قرار۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب پنجاب کے تجزیہ میں مارکیٹ میں فروخت ہونے والی 11 ادویات غیر معیاری اور جعلی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بانجھ پن کے علاج زخموں پر لگانے والی ادویات جعلی نکلی، سرجریز اور مرگی کے دوروں کے لیے استعمال ہونے والے انجیکشن اور مختلف برانڈز کے سیرپس بھی غیر معیاری نکلے۔ رپورٹ کے مطابق تمام غیر معیاری سیرپ کھانسی، نزلے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سیرپ میں ایتھنال گلائکول کی تعداد ممنوعہ مقدار سے بہت زیادہ پائی گئی۔ جن ادویات کے نمونے فیل قرار پائے ان میں ٹیبلٹ گریون، اسٹیرائڈ واٹر فار انجیکشن، انجیکشن ویبیون، سلوشن پائیوڈین، انجیکشن کیٹوسیف، انجیکشن ایپراگران، سیرپ الرفین، سیرپ ریسٹرل، سیرپ 2 ریکس، سیرپ 2 ریکس ڈی ایم اور سیرپ ٹیکسکول ڈی ایم شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 9 مختلف ادویات لاہور میں مینوفیکچر ہو رہی تھیں، 2 غیر معیاری ادویات کراچی میں تیار کی جا رہی تھیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ڈرگ کنٹرول پنجاب نے ادویات ساز کمپنیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ پنجاب کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، 31% بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگے، صوبے بھر میں صرف 69% بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکا۔ لاہور ایمونائزیشن توسیعی پروگرام میں آخری نمبر پر آ گیا، محکمہ پرائمری ہیلتھ کی رپورٹ ضلعی شعبہ صحت لاہور کی کارکردگی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ EPI ڈائریکٹوریٹ کی رپورٹ نے ضلعی شعبہ صحت لاہور کی کارکردگی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہ لگنے سے لاہور کے 5 برس کی عمر کے بچوں کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں اوسطاً EPI کوریج 89% رہی، لیکن لاہور میں 69% کوریج کے ساتھ پنجاب کے 36 اضلاع میں آخری نمبر پر آ گیا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ EPI کوریج میں لاہور کی بدترین کارکردگی پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے بجائے پردہ ڈالنے کے لیے کوشاں ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ محسن نقوی کے احکامات، اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، لیسکو کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 4 سال کا ریکارڈ طلب، 2 سال میں بدلے گئے میٹرز کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ذرائع نے بتایا کہ FIA نے مراسلے کے ذریعے کمپنی کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 2 سے 4 سال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ FIA نے 2 سال کے دوران چارج ہونے والے ڈیٹیکشن بلز اور تبدیل ہونے والے میٹرز کا ریکارڈ MCO رپورٹس کے ساتھ مانگ لیا ہے۔ اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ سے 2 سال کے دوران ریویو ہونے والے بلز کا ڈیٹا، جبکہ 4 سال کے دوران نصب ہونے والے نیو کنیکشنز کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ FIA نے تحقیقات کے دوران 48 کروڑ روپے کے اضافی بلز چارج کرنے کی نشاندہی کی ہے۔ اس وقت پاور سیکٹر میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو بتائیں لیسکو کے باغبان پورہ ڈویژن میں کروڑوں یونٹس کی اوور بلنگ، کرپٹ افسران کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اوور بلنگ پر متعدد SDOs کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملک ارشد، سید شیراز، عبد الجبار بھی شامل ہیں، جبکہ SDO جہاں زیب اشرف، مظہر علی، جنید علی، کاشف، عمران قابو آ گئے۔
FIA के मुताबिक मीटर इंस्पेक्टर्स और मीटर रीडर्स को भी इंक्वायरी में शामिल किया जाएगा। दूसरी जानब पुलिस भी मुतहरिक बिजली चोरी के 17,000 चालान पेश कर दिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक और बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्ती अफराद की छांटी। PCB इलेक्शन कमीशन और स्क्रूटनी कमेटी तहलील। अरबाब अल्ताफ समेत 13 अरकान की कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जबकि 3 डेप्यूटी कमिश्नर्स और 3 असिस्टेंट टू डेप्यूटी कमिश्नर्स की छुट्टी हो गई। स्क्रूटनी कमेटी के 5 अरकान को भी फारिग कर दिया गया है। चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक हो गए। PCB में गुज़िश्ता अतवार में सियासी बुनियादों और इकराबा परवरी की बुनियाद पर भर्ती किए जाने वालों की छांटी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 13 अरकान के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए। फारिग होने वालों में 3 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, 3 असिस्टेंट टू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर शामिल हैं। चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी अरबाब अल्ताफ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। स्क्रूटनी कमेटी के 5 अरकान समेत एडवाइजर इलेक्शन कमीशन को भी फारिग कर दिया गया, जबकि मजीद के कॉन्ट्रैक्ट खत्म या इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। हुकूमत रोटी नान सस्ते कराने में नाकाम। अवाम पुराने रेट पर खरीदारी से परेशान। तंदूर मालिकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तंदूर मालिकान रोटी 20, नान 25 रुपए का फरोख्त करने लगे। इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के माबैन डेड लॉक बरकरार है। इंतजामिया भी सरकारी निर्खों पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। तंदूर मालकान हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी मनमानी कीमत पर रोटी और नान फरोख्त करने लगे। तंदूर मालकान रोटी 20 रुपए जबकि नान 25 रुपए का फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपए और नान की 20 रुपए मुकर्रर की है। तंदूर मालकान का कहना है इंतजामिया की जानिब से ताहाल रेट लिस्ट फराहम नहीं की गई। सिर्फ आटा सस्ता होने से रोटी की कीमत में कमी कैसे कर सकते हैं। गैस LPG की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी जानिब सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने रोटी नान की कीमतों का जायजा लेने के लिए शादमान और मुस्लिम टाउन का दौरा किया। महंगी रोटी बेचने पर वहदत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए। बिलाल यासीन ने मार्केट की नाकिस मॉनिटरिंग पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरजनिश भी की। मिनिस्टर पंजाब ने खुद हुक्म किया है कि खुद हर बाजार में पहुंचने की कोशिश करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम काम छोड़ के इस काम को हर सूरत में इस पे जो नोटिफाइड प्राइस है उस पर इंश्योर करेंगे। के साथ भी हम बैठने जा रहे हैं। हमने जो रेट निकाले हैं उनका गैस के बिल, उनकी जो प्लेस का रेंट और उनकी जो लेबर है और उसके साथ प्रॉफिट रखने के बाद ये निकाले हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, मगर उसके बावजूद भी उनकी जो जायज़ बात है उसको मिलने के लिए मैं भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिन DC साहब भी यहाँ पे मौजूद है, हम तैयार हैं। नान और रोटी के कीमतों के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और गिरफ्तारियां भी जारी हैं। शहर में एक दिन में 10,50,000 से ज्यादा जुर्माने और 69 अफराद को गिरफ्तार किया गया। रोटी कितने की बेच रहे हैं? मियां नवाज शरीफ कीमत मालूम करने तंदूजा पहुंचे। वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा अड्डा प्लॉट में रोटी की कीमत का जायजा लिया। कहा हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद तक रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अड्डा प्लाट पर नान भाइयों से मुलाकात की, उनसे रोटी की कीमत मालूम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रेट लिस्ट का भी जायजा लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुद में देखकर अवाम ने खुशगवार हैरत का इजहार किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम से उनकी राय भी मालूम की। राउद इरशाद हुसैन, सिटी 42। अब आपको बताएं कि कंप्यूटर साइंस के साथ इंटर करने वाले तुलबा के लिए प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर सख्त किए गए। तालीमी बोर्ड की जानिब से ताहाल तहरीरी तौर पर प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स बारे कॉलेज को आगाह न किया जा सका, जिसके बायस रवा साल कंप्यूटर के अमली इम्तिहान में हजारों उम्मीदवारों के नंबर्स कम लगने का खदशा पैदा हो गया है। तालीमी बोर्ड की जानिब से ताहाल उम्मीदवारों को प्रैक्टिकल कॉपी नंबर्स बारे आगाह ही न किया जा सका। रवा साल जून में लिए जाने वाले कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी के 3 नंबर होंगे। प्रैक्टिकल कॉपी अमली इम्तिहान वाले दिन एग्जामिनर को दिखाना लाजमी होगा। कंप्यूटर पढ़ाने वाले असातिज़ा ने तालीमी बोर्ड को नंबरों की वजाहत बारे लेटर जारी करने का मुतालबा किया है। असातिज़ा का कहना है कि तुलबा और तालिबात कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स बारे आगाह नहीं है। बेशतर बच्चे प्रैक्टिकल वाले दिन कॉपी तैयार करके नहीं लाते। उनका कहना था कि बाकी साइंस मज़ामीन के प्रैक्टिकल कॉपी के पहले से ही नंबर्स थे। कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी के नंबर्स रवा साल 2024 के इम्तिहान से लगाए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की बसें नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नादहिंदा निकली। लाहौर की 20 सरकारी और निजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाने, डिफाल्टर गाड़ियों का टोकन टैक्स जमा करवाने का मरासला जारी कर दिया गया।
एक्साइज मोटर्स लाहौर चौधरी आसिफ ने शहर की 20 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के नाम खत भिजवाया है। मरासला में कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियों के टोकन टैक्स अदा, जबकि नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को फौरी तौर पर रजिस्टर करवाया जाए। दौरान चेकिंग मुतादिद यूनिवर्सिटीज की बसें नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स न दहिंदा निकली। यूनिवर्सिटीज इंतजामिया तमाम गाड़ियों का बर वक्त टैक्स जमा करवाएं। क्रैकडाउन के दौरान तमाम नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा गाड़ियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिला इंतजामिया ने लाहौर के 98 मकामात से टेंकी लार्वा बरामद करके तल्फ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान रूट पर कार्रवाई। मुख्तलिफ यूनिट से 16,800 लीटर एक्सपायर्ड जूस, 12,600 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक से पकड़ी गई। LTA ने गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। फिर सर उठाने लगा। जिले इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 98 मकामात पर डेंगू लार्वा बरामद करके तलब कर दिया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने मुल्तान रोड पर वाक़े मुख्तलिफ यूनिट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। दौरान कार्रवाई जाली जूस और बोतलें तैयार करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कोल्ड ड्रिंक्स यूनिट्स में 16,800 लीटर एक्सपायर जूस, 12,600 लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद थी, जिन्हें मौके पर तलब कर दिया गया। LTA के शोबा टाउन प्लानिंग ने जेल रोड पर गैर कानूनी तौर पर सेकंड फ्लोर बनाने पर चांगन का शोरूम सरबमोहर कर दिया। केनाल रोड पर स्पिरिट स्कूल की गैर कानूनी इमारत को मुस्मार कर दिया गया। फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी कमर्शियल दुकानों और हाल को गिरा दिया गया। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहिर ने अमले के साथ कार्रवाई की। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। पंजाब असम्बली में महकमा तालीम के अधूरे जवाबात ने वज़ीर तालीम को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर तालीम को बार बार ऐवान से माफ़ी मांगना पड़ी। ताख़ीर से इजलास में पहुंचने पर भी वज़ीर तालीम सेक्रेटरी एजुकेशन के खिलाफ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। डेप्यूटी स्पीकर ने भी बरहम होकर रूलिंग दे दी। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर हस्बे रिवायत 2 घंटे 16 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। सूबाई वज़रा भी ताखीर से ऐवान में पहुंचे। वजीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतों में इजाफे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। रोटी की कीमत में कमी करके हुकूमत ने आम आदमी को रिलीफ दिया है। 25 रुपए आटे किलो के पीछे कमी आने से आपकी जो रोटी है उस पर 4 रुपए कमी आई है। और फर्दर भी इसमें जब हमारी पूरी क्रॉप आ जाएगी गंदम की इस महीने के अखीर तक, तो और फर्दर भी इसमें कमी आ सकती है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना था कि अवाम को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइस टैग है पेट्रोल का, वो गवर्नमेंट की एक पूरी उस पर SOPs बनी है, उसके मुताबिक वो होता है। और इंशाल्लाह ताला वी आर वर्किंग ऑन दैट एज इट्स अ मैटर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट एज वेल। और हम आवाम की सहूलियात के लिए, आवाम की आसानी के लिए इंशाल्लाह हम इस पर भरपूर तरीके से इस पे वर्क भी करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आप इसमें कमी भी देखेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस गंदम की खरीदारी मुहिम से काश्तकारों को नुकसान होगा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मुल्की तारीख में पहली मर्तबा गंदम की खरीदारी के हदफ में कमी की गई। बुनियादी इशूज हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है। ये अब डीजल पेट्रोल का कर लिया, ये किराए बढ़ेंगे। और ये कभी आज तक सुना है कि 1 रुपया कम होता है 5 रुपये बढ़ जाते हैं। 16 लाख ऑलमोस्ट मेट्रिक टन इन्होंने कम कर दिए खरीदारी का हदफ। और इस वक्त जो कि रेट है वो तकरीबन 2800 से लेके 3400 रुपये पर मन पर 40 किलोग्राम पे ये रेट चल रहा है मार्केट में। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन राना अयाज के साथ हसन अली, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेजी से जारी हैं। उम्मीदवार ब्राय PP 147 मलिक रियाज के एजाज में शेरावाला गेट में जलसा हुआ। माजिद जहूर ने खसूसी शिरकत की। शेरावाला गेट UC 33 में लीगी रहनुमा चौधरी शेख गुजर ने उम्मीदवार PP 147 मलिक रियाज के एजाज में जलसे का एहतमाम किया। माजिद जहूर, वहीद गुल, हाफिज अयाज, आसिम भट्ट, अदनान भट्ट, हानी भट्ट ने शिरकत की। चौधरी उमर, चौधरी मुर्तजा, बूबी गुजर, हमदान भट्ट, हमाद भट्ट, मलिक तारिक समेत लीगी कारकुनान की कसीर तादाद भी शरीक हुई। लीगी कारकुनान ने शेरा के नारे भी लगाए।